Jai Shri Hari, welcome. Om Shri Matre Namaha and Har Har Mahadev. So I hope you're able to hear me and see me clearly. If yes, please give us a small Y or yes on the chat and we will know. Excellent. Excellent. Thank you so much for responding. Welcome all. Today is, and this current time is a very auspicious moment. As you all know, we are inching towards Mahashivratri and Amavasya, one of the best times to perform rituals of Lord Shiva and Ma Kali. So in this auspicious time, we wanted to conduct a workshop, a set of sessions to immerse ourselves in the devotion of Lord Shiva and Ma. So we were gracious. We were, we are very thankful that Brahmachari ji could make time to conduct these sessions over the next 3 days, today, tomorrow, and day after tomorrow. So we welcome you all to attend this set of series we call as Shakti, Bhakti, and Shiv. So before we invite Brahmachari ji and ask him to conduct the session and take us through the grace of Ma, and today's is special as well. Firstly, welcome you all. My name is Vikram Shastri. I represent Vedic Sadhana Foundation and the Tantra Sadhana team. So welcome all. I know many of you know that you are now on a new channel, and traditionally where we conduct all these live sessions is on the Tantra Talks channel, which 24 hours ago, Google simply deleted that channel for us, unfortunately, without giving us any kind of, prior information. We have appealed, and we may take some of your support to appeal to Google that our channel was not trying to spam or scam anyone. It's the algorithm that picked up based on filters which we don't understand, and unfortunately the channel has got deleted. We hope it's an error. We have had this couple of times earlier for other accounts, apps as well, and thankfully each time it has been reinstated with the grace of the divine. So thank you for showing up on this channel. And we know many of you wrote to us on our customer desk, on our other channels, asking, "Arey, ye kya hua? Channel hi gaib ho gaya." And all the live sessions that we had conducted, that many of you would go and repeat, etc., are suddenly unavailable to all. We hope with the grace of the divine, the account and channel will be reinstated in the coming days. Well, that being said, the more important thing is to kick off today's session. So just in case some of you are new, just as a very quick introduction, as I said, I represent Vedic Sadhana Foundation. It is a non-profit founded by Sri Om Swamiji, the the master and monk who has walked the path of Dash Mahavidyas and Vedic practices, and an expert meditator and an author. And of course, if many of you know Om Swami as the monk, the author, the meditator, the expert, and there will be many commas ahead. Having said that, if you don't know about Swamiji, as we call him dearly, please go to YouTube, go to read his books, go read his blogs to know more about him. Tantra Sadhana is one of the apps that is created by him, where we walk the path of performing the sadhanas of the Dash Mahavidyas. So on behalf of the Tantra Sadhana team, we are conducting this series today, and I welcome you. If you are new, if you have not installed the app and tried us out yet, please do so. And on behalf of VSF, as we call ourselves in short, I welcome you, and we have a special sadhana that is coming up, which will be conducted live by Swamiji. Brahmachari ji will walk us through it in the coming days and give us all the information. It's one of the most auspicious time to be able to perform such a sadhana live with the guidance of Swamiji. So without further ado, I invite Brahmachari ji to take us through today's topic. Brahmachari ji, Jai Shri Hari, thank you so much for conducting this session.
थैंक यू सो मच विक्रम, थैंक यू। इट ट्रूली मीन्स अ लॉट। बहुत मुझे आनंद आता है हर बार की तरह यहाँ पर आकर, और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात होती है कि मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर पाता हूँ देवी माँ को, देवी माँ के विषयों को। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ने से पहले गुरु स्तुति एक बार करते हैं और भगवान का, गुरु देव का आवाहन करते हैं, और उसके बाद सेशन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंतर्मन में विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। इदं गुरवे इदं न मम, नारायण नमोस्तुते। देवी माँ भैरवी। तो जब आप तंत्र साधना ऐप पर साधना करते करते यहाँ तक पहुंचेंगे, सबसे एक प्रोमिनेंट परिवर्तन, एक बहुत ही, जो आप कह सकते हैं कि देखा जाने वाला परिवर्तन आपके भीतर जो होगा, वो कहीं ना कहीं आपके जो अटैचमेंट्स हैं, आपका जो मोह है, आपका जो लोभ है, आपकी जो लालसा है, उसमें धीरे 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 एक घटौती आना शुरू होगा, उसका क्षय होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देवी माँ भैरवी जो है वो नित्य प्रलय को दर्शाती है। नित्य प्रलय अर्थात एक होता है महाप्रलय, एक है नित्य प्रलय। तो जब हम बात करते हैं नित्य प्रलय की, एक एक क्षण जो बीत रहा है वो हमें धीरे 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 मृत्यु की ओर आगे लेकर जा रहा है। हम जब कहते हैं कि दिन बीता, महीने बीते, साल बीते, और धीरे 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 एक समय जो है वो आगे बढ़ता गया, दशक बीतते गए, वो सूचित क्या करता है? समय का आगे बढ़ना। हालांकि हमारा जो मानव समाज है वो उसे एक सेलिब्रेशन के तौर पर लेता है। हर साल बर्थडेज आते हैं, हर साल जन्मदिन मनाए जाते हैं, हर साल वो सेलिब्रेशन होता है जो कहीं ना कहीं इंसान जैसे कहने की कोशिश कर रहा हो कि आप एक साल और आगे बढ़ चुके मृत्यु की ओर। तो यहाँ पर अब थोड़ी सी बात समझनी होगी, क्योंकि मृत्यु का जो भय है ना, वो हम सबके दिमाग में इतना ज्यादा घर कर चुका है, वो एक रूढ़िगत बात हो चुकी है। बहुत ही पहले से हमारे दिमाग में एक विचारधारा के चलते, सामाजिक बंधनों के चलते, रीति रिवाजों के चलते, और जो समाज ने एक पूरा स्ट्रक्चर बिल्डअप किया हुआ है, उसके चलते मृत्यु का भय सविशेष देखा जाता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जब हम ये कहते हैं, जब हम सब ये बात करते हैं कि हम मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसे पहले दृष्टिकोण से तो नेगेटिव ही देखा जाता है, उसे नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखा जाता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो मृत्यु को या फिर मृत्यु की बात को सहजता से, बहुत ही साहजिक भाव से कर पाते होंगे। तो मृत्यु को स्वाभाविक तौर पर ले पाना, स्वाभाविक समझ पाना, वही अपने आप में देवी माँ की सबसे बड़ी कृपा होती है, जहां पर आप मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाते हैं। आपको अपने वृद्ध होने का, आपको स्वयं के शरीर के वृद्ध होने का, स्वयं के क्षय का भय नहीं रहता। और उसी भय का नाश करने वाली जो देवी है वो है भैरवी। और बहुत ही सुंदर अवसर प्राप्त होने जा रहा है हमें। मैं बहुत बार कह चुका हूं, फिर से एक बार, ये जो विधान है, ये जो पद है जो दुर्गा सप्तशती में दिया गया है, उसे मैं दोहराना चाहता हूं यहाँ पर। कालरात्रिर मोहरात्रि महारात्रिश्च दारुणा, त्वम श्रीस्त्वम ईश्वरी, त्वम प्रीस्त्वम बुद्धिर्बोध लक्षणा।
पूरे वर्ष में 4 महारात्रियां आती हैं जो अपने आप में सविशेष मानी जाती हैं, दुर्लभ मानी जाती हैं, अलभ्य मानी जाती हैं और साधना के लिए एक विलक्षण क्षण मानी जाती है। कौन सी है वो 4 रात्रि? काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि और दारुण रात्रि। काल रात्रि अर्थात दीपावली की रात, मोह रात्रि अर्थात जन्माष्टमी, दारुण रात्रि अर्थात होली की रात और महारात्रि अर्थात महाशिवरात्रि की रात। ये 4 रात्रियां ऐसी हैं जहां पर कोई भी साधक यदि किसी भी प्रकार से वैदिक अथवा तांत्रिक साधना आरंभ करते हैं, उनकी वो साधना अत्यंत प्रचंड स्वरूप में सफल होना तय है। और ये मेरा विधान नहीं है, ये किसी मनुष्य का लिखा हुआ विधान नहीं है। ये साक्षात श्री दुर्गा सप्तशती में जो माँ दुर्गा की, देवी माँ आदि पराशक्ति की अपनी वाणी मानी जाती है, उनका विधान है कि यदि इन 4 रात्रियों पर कोई भी साधक, कोई भी भक्त, कोई भी उपासक अपने इष्ट की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इन 4 रात्रियों से अत्याधिक दुर्लभ और अत्याधिक महत्वपूर्ण रात्रि या समय और कोई नहीं हो सकता। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि हो रही है और तंत्र साधना ऐप पर स्वामी जी के द्वारा जो हमें अवसर प्राप्त हुआ कि हम 10 महाविद्याओं की साधना कर पाए, उनमें से बहुत सारे महाविद्याएं जो है वो शायद हो सकता है आपने अनलॉक कर ली हो। आप अभी तक यदि यहाँ पर हैं और भैरवी माँ के बारे में सुन रहे हैं, पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है कि आप ऑलरेडी भैरवी माँ की जो श्राइन है, उनका जो स्थान है, उनका जो निवास है, वहां तक पहुंच चुके होंगे आगे की साधनाओं को पूर्ण करने के बाद। तो भैरवी माँ के बारे में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं बिफोर हम बात करें कि महाशिवरात्रि और उस समय पर क्या करना चाहिए आपको। देखिए, जो बात हम कर रहे थे नित्य प्रलय की, देवी माँ छिन्न मस्ता जो है वो महाप्रलय के साथ जुड़ी हुई है और देवी माँ भैरवी जो है वो नित्य प्रलय के साथ जुड़ी हुई है। अब यदि आप थोड़ा सा गहराई में समझने का प्रयास करेंगे तो नित्य प्रलय ही महाप्रलय की ओर आपको लेकर जाता है। महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी। एक ही बार महाप्रलय होता है, एक ही बार महातांडव होता है। प्रत्येक महाकल्प के अंत में मात्र एक बार भगवान देवादिदेव महादेव सदाशिव महाकाल, जिन्हें हम महा भैरव भी कहते हैं, काल भैरव भी कहते हैं, वो मात्र एक बार नृत्य करते हैं, महातांडव करते हैं और वो होता है संहार तांडव। और प्रत्येक महाकल्प के अंत में उस संहार तांडव के माध्यम से महादेव समस्त ब्रह्मांड को, अनंत कोटि विश्व को, अनंत कोटि जगत को अपने भीतर हमेशा हमेशा के लिए समाहित कर लेते हैं और एक नए विश्व का, नए ब्रह्मांड का निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। वो ब्रह्मांड जो है, वो विश्व जो है, वो नया जगत आगे बढ़ जाता है। एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास में स्वामी जी ने लिखा कि जब भी एक नए ब्रह्मांड का निर्माण होता है, महादेव के उस महातांडव पूर्ण होने के पश्चात, उस समय पर वो नया ब्रह्मांड अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशनल क्वालिटीज लेकर उत्पन्न होता है। परिवर्तनकारी, परिवर्तनशील वो ब्रह्मांड जो है वो अपने भीतर नई क्वालिटीज को लेकर निर्मित होता है, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। तो जो पुराने ब्रह्मांड में जितने भी क्षय हुए, जितने भी क्षतियां थी, उन सभी क्षतियों को भगवान जैसे एक उत्कृष्ट मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, वो अपनी प्रोडक्ट को बनाने से पहले 100 बार उसके ऊपर अध्ययन करेंगे, R&D करेंगे, उसके बाद उस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से बनाने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो तब बहुत सारी फरियादें आए लोगों की ओर से, जो कंज्यूमर है, जो यूजर है, उनकी ओर से कंप्लेंट्स आ सकती है।
तो अब यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो शांति से तो बैठेगा नहीं। जो उसने अपनी प्रोडक्ट का पहला वर्जन बनाया वो ध्यान से फिर से एक बार उसका अध्ययन करेगा। लोगों की ओर से जो फीडबैक आया, जो प्रतिभाव आया, उसी के आधार पर वो नए सिरे से अपना रिसर्च शुरू करेगा और एक ऐसी प्रोडक्ट बनाएगा जिसे हम कहते हैं 2.0, वर्जन 2.0, जहां पर फिर से एक बार प्रोडक्ट जो है वो नए परिवर्तन के साथ, नई क्वालिटीज के साथ, क्षतियों को दूर करने के बाद मार्केट में फिर से एक बार लॉन्च होगी। वही जो टर्मिनोलॉजी है, वही जो एक समझ है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ महातांडव के इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो जब जब महादेव महातांडव करते हैं उसके बाद जो सृष्टि का निर्माण होता है वो पुराने सृष्टि के मुकाबले परिवर्तनशील होती है। कुछ उसमें नया एड ऑन होता है, जो पुरानी क्षतियां थी वो दूर कर दी जाती हैं और फिर से एक बार एक नए विश्व को चलायमान कर दिया जाता है। तो ये जो महाकल्प का समय है जहां पर महातांडव होता है, महाप्रलय होता है, उसकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो है देवी मां छिन्न मस्तक। किंतु यहां तक पहुंचने के लिए तो किसी की सहायता चाहिए। यदि आप सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को बना रहे हो, उसे बाहर मार्केट में डाल नहीं रहे हो, कोई कंज्यूमर नहीं है, वो प्रोडक्ट जो है वो आगे जाकर, वो जो चीज है, वो जो वस्तु है, वो किसी तक पहुंच नहीं रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो उस वस्तु को आगे लेकर जाने के लिए मैन्युफैक्चरर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शुरू करता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स उसमें जुड़ना शुरू हो जाते हैं और धीरे 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 वो प्रोडक्ट जो है वो चलायमान होना शुरू हो जाती है। तो वैसे ही हमने महाप्रलय की तो बात की, जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, जो एक फाइनल प्रोडक्ट है, किंतु वहां तक पहुंचने के लिए भी उसे कंज्यूमर तक, यानी कि सृष्टि के जो समस्त जीव हैं उन तक पहुंचाने के लिए भी कोई तो चाहिए। वो है देवी मां भैरवी, जो नित्य प्रलयकारिणी है। एक एक क्षण ये जो बीत रहा है, हमने 7:30 बजे इस लाइव की शुरुआत की, अभी ऑलमोस्ट 7:48 हो चुके हैं। तो ये जो समय बीता, ये एक एक क्षण, ये कभी वापस नहीं आती। हम कह सकते हैं कि इन क्षणों का, इन मिनट्स का क्षय हो चुका, ये प्रलय की ओर आगे बढ़ चुकी है, इनका प्रलय हो चुका है। ये जो सारे सेकेंड्स थे, ये जो सारे मिनट्स थे, ये सृष्टि के उस अंतिम छोर पर जाकर मिल चुके हैं जहां से वापस आ पाना संभव नहीं है। और ये जो समय बीत गया उसका प्रलय हो चुका है। और प्रलय जिस चीज का हो गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। एक बार यदि इंसान की मृत्यु हो गई, एक बार जीवात्मा ने शरीर को छोड़ दिया, फिर वो आत्मा वापस उसी शरीर में नहीं जा सकती जहां से वो बाहर निकली हुई है। वैसे ही एक बार यदि समय ने अपनी गति के चलते भूतकाल को पीछे छोड़ छोड़ दिया, तो फिर उसी भूतकाल को वापस ला पाना संभव नहीं है। प्रत्येक बीती हुई क्षण या बीत रही जो क्षण है सारी, वो है नित्य प्रलय का अर्थ। एक एक क्षण नित्य प्रलय हो रहा है। हम आज, मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं इस लाइव को, और इसी के दौरान हमारे शरीर में आप सोचिए कितने सारे परिवर्तन हो रहे हैं। एक कोष जीवित हो रहा है, पुराने कोष जो है, ओल्ड सेल्स सारे जो बूढ़े हो चुके हैं, जो अब कार्यरत नहीं है, उसको शरीर अपने आप ही अपने भीतर खत्म करता जा रहा है। हमारे भीतर ही प्रलय की एक प्रक्रिया निरंतर चल रही है। इस बात को जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक मृत्यु की परिभाषा को धारण कर पाना, समझ पाना और उस सत्य का स्वीकार कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। जब तक आप ये नहीं स्वीकार करेंगे कि हम निरंतर प्रलय का एक मशीन है, ये शरीर जो है वो अपने आप में प्रलयकारी
वस्तु हैं। एक एक क्षण इस शरीर में किसी ना किसी कोश का, किसी ना किसी अंग का निरंतर क्षय हो रहा है। जब हम जन्मे थे, जब हमारा जन्म हुआ था, उस समय पर हमारा हृदय, हमारे लंग्स, हमारा लीवर, हमारा ब्रेन जितना कार्यरत था, जितना फ्रेश था, उन अंगों में, उन अवयवों में जो ऊर्जा थी, जो नवीनता थी, जो नवपल्लवित पन था, वो हो सकता है धीरे 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 समय के साथ उसका क्षय होना शुरू हो जाए। क्या कोई भी इंसान ये कह सकता है कि उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद, जिसे हम 60s कहते हैं, 70s कहते हैं, उस व्यक्ति का हृदय उसी प्रकार का होगा, उतना ही फ्रेश होगा, उतना ही पंपिंग कर रहा होगा जितना एक 10 साल के बच्चे का हृदय कर रहा? नहीं, संभव ही नहीं हो सकता ये। यही दर्शाता है कि माँ भैरवी जो है, वो नित्य प्रतिदिन प्रत्येक क्षण हमारे भीतर विद्यमान होकर उस नित्य प्रलय को आगे बढ़ा रही है। वो कारक है, करने वाले हैं। ये जो कोष मर रहे हैं, शरीर उसको रिप्लेस कर रहा है, ये कौन सी ऊर्जा कर रही है, कैसे हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ माँ भैरवी। ये उस ऊर्जा का नाम है जो नित्य प्रतिदिन हमारे शरीर को, हमारे मन को, इस समस्त सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को धीरे धीरे धीरे, जो उसका पुरानापन है उससे हटाकर नएपन की ओर, नए विश्व की ओर, नए परिवर्तन की ओर आगे लेकर जा रहे हैं। तो भैरवी माँ नित्य प्रलय की सूचक है, द्योतक है। और उनकी साधना जो आप तंत्र साधना ऐप पर देखेंगे, उसमें दिए गए हैं पंचमुंडी आसन। पंचमुंडी आसन की एक साधना आपको वहां पर प्राप्त होगी। सवाल है कि पंचमुंडी आसन की ये जो साधना है वो क्या दर्शाती है? देखिए, कहने के लिए तो बहुत सारी जगहों पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, जिसे हम कहते हैं बुकिश नॉलेज। पुस्तक में एक ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उस ज्ञान के पीछे का गूढ़ार्थ जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक साधना के मूल में उतर पाना, देवी माँ को पूर्णतया अपने हृदय कमल पर धारण कर पाना, उनको आत्मसात कर पाना संभव नहीं होगा। तो क्यों आखिर पंचमुंड दर्शाए गए? अब देखिए, पंचमुंड कौन से हैं उसके बारे में भी बहुत सारी डिबेट हो सकती है। कई सारी जगहों पर उसके अलग अलग उल्लेख प्राप्त होते हैं, जैसे कि मनुष्य का मुंड, रेबिट का, खरगोश का वहां पर मुंड प्राप्त होता है, फॉक्स का होता है, स्नेक का होता है, यानी कि सांप हो गए, और लोमड़ी हो गई, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारे अलग अलग कई जगहों पर बुल का जो, भैंसे का जो मुंड है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो पंचमुंडी आसन बेसिकली दर्शाता क्या है? और सबसे ज्यादा जो प्रश्नार्थ चिन्ह होना चाहिए, जिस चीज के ऊपर होना चाहिए, वो है कि ये मुंड ही ऐसे ही क्यों दर्शाए गए। करने के लिए तो ये भी किया जा सकता था कि जो पशु या प्राणी का मुंड कटा हुआ प्राप्त होता है, या फिर जो मृत पशु है, मृत प्राणी है, उनके मुंड को जब लिया जाता है, तो वो वैसा का वैसा ही स्थापित किया जा सकता था। क्या जरूरत थी उसके ऊपर से चमड़ी को उतार कर सिर्फ और सिर्फ जो अंदर का स्कल होता है, जो खोपड़ी होती है, सिर्फ उसे ही क्यों, उसकी आराधनाएं क्यों होती है, उसकी ही पूजा क्यों होती है, उसे ही जागृत क्यों किया जाता है, उसमें ही देवी माँ का आवाहन क्यों किया जाता है, उसके ऊपर बैठकर ही साधना क्यों की जाती है? तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पंचमुंड जो है, जो बिना चमड़ी वाले हैं, जिसके ऊपर कोई लेयर नहीं है, कोई आवरण नहीं है, वो दर्शाता है नग्न सत्य को, द नेकेड ट्रूथ। जीवन का जो अंतिम सत्य है मृत्यु, जीवन का जो अंतिम सत्य है कि सब अंदर से एक समान ही है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसके मस्तिष्क में, जिसके मस्तक पर, यदि आप देखें, हो सकता है सबके आकार अलग अलग हो,
सबके चेहरे अलग अलग हो, किंतु जब वो चमड़ी उतरती है, जब वो आवरण उतरते हैं, सबके अंदर जो खोपड़ी दिखाई देती है ना, वो हड्डी से ही बनी हुई होती है। उन खोपड़ी का कोई रंग नहीं होता, वो कभी अलग अलग रंगों की प्राप्त नहीं होगी आपको। वो खोपड़ी ये नहीं होती कि ये अमेरिकन खोपड़ी है तो वाइट होगी, और ये अफ्रीकन है तो थोड़ी सी काली होगी। नहीं, सभी प्रकार की जो खोपड़ियां हैं, चाहे विश्व में कोई भी मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, सभी की खोपड़ी जो है वो कहीं ना कहीं, उसमें कोई भेदभाव, उसमें कोई पक्षपात भगवान ने नहीं रखा। तो कहीं ना कहीं पंचमुंड जो है वो हमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जीवन का अंतिम सत्य है, इसे स्वीकारो, इसका स्वीकार करो। मृत्यु के बाद, मरण के बाद यही तुम्हारा सत्य होगा। मृत्यु के बाद जब चिता जल जाएगी, जब तुम्हारा शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, उसके बाद जो दिखाई देगा वो अल्टीमेट ट्रूथ, वो परम सत्य यही होगा। तो इंसान को डर तब तक लगता है जब तक उसने अंधकार में पांव नहीं रखा। सबसे ज्यादा डर हम तभी अनुभव करते हैं जब हम किसी अंधकारमयी जगह पर जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि आगे क्या है। क्या इसका मतलब यह है कि डर हमें भूत प्रेत का है या फिर पशु प्राणी का है? नहीं। हो सकता है आप ऐसी जगह पर हो जहां पर कोई खूंखार पशु प्राणी वन्य जीव जो है वो है ही नहीं, फिर भी यदि वहां पर अंधकार है तो आप डरेंगे, क्योंकि अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। जहां पर अज्ञानता है, जहां पर अंधकार है, वहां पर हमेशा डर ही दिखाई देगा, डर का ही अनुभव होगा, क्योंकि आपको पता नहीं आगे क्या होने वाला है। जो आपको दिखाई नहीं देता, जो दृश्यमान नहीं है, उस अदृश्य चीज का डर आपके मन में बैठा रहेगा। मृत्यु हमारे लिए वैसा ही अंधकार है। सामान्य मनुष्य के लिए मृत्यु जो है वो कहीं ना कहीं उसी अंधकार में पांव रखने वाली बात है। उसे पता नहीं कि अनुभव क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके पहले क्या होता है, उस समय पर क्या होता है, उसके बाद की यात्रा क्या होती है, और उस यात्रा में चलने के बाद हम जिनको प्रेम करते थे उनका क्या होगा। यहाँ पर वो सब लोग जब रह जाएंगे और हम चले जाएंगे आगे, उसके बाद उनका क्या होगा। हमारी इच्छा जब परिपूर्ण नहीं होगी तो क्या होगा। यदि मृत्यु के समय पर कोई तृष्णा, कोई इच्छा, कोई मनोकामना मेरी बाकी रह गई तो क्या होगा। इन चीजों का जो डर है ना, वही मृत्यु के प्रति हमारी अज्ञानता को और बढ़ावा देता है। किंतु ये जो पंच मुंड है वो वही दर्शाते हैं कि डर से बाहर निकलकर अपने परम सत्य को स्वीकार करो कि मृत्यु के बाद आगे की यात्रा में आपके साथ कोई नहीं होने वाला। आप जिनको भाई बहन, माँ पिता, पत्नी, मित्र, सखा मान रहे हैं, वे सभी चले जाएंगे आपसे दूर। आपकी यात्रा अकेले ही होगी, आगे बढ़ेगी, और आपको अकेले ही आगे बढ़ना होगा उस यात्रा में। स्वामी जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जीवन में दो यात्रा जो है वो इंसान केवल और केवल अकेले रहकर ही संपन्न कर सकता है। पहली, आत्म साक्षात्कार अर्थात साधना की यात्रा। दूसरी, मृत्यु की यात्रा। आप चाहकर भी इन दोनों यात्राओं में किसी को भी साथ में लेकर नहीं जा सकते। विचार कर देखिएगा, क्या आप सामूहिक तौर पर कोई साधना करने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं? क्या यह संभव है कि आप पूरा जीवन किसी के साथ बैठकर साधना करें और आप दोनों को एक साथ साक्षात्कार हो? क्या यह संभव है कि आप किसी के साथ बैठकर उपासना करें, पूजा अर्चना करें पूरा जीवन, और आप दोनों को ईश्वर के, देवी माँ के एक ही स्वरूप का दर्शन हो, एक ही समय पर हो? नहीं। सबके कर्म अलग अलग हैं, सबके प्रारब्ध अलग अलग हैं, सबके संचित कर्म जो है वो अलग अलग है, सबके भाव अलग अलग हैं, सबकी क्रियाएं अलग अलग हैं। सभी का समर्पण, श्रद्धा, आस्था
भक्ति अलग अलग है, तो कैसे वो यात्रा एक साथ आगे बढ़ सकती है? और दूसरी यात्रा मृत्यु की, चाहकर भी आप किसी को हाथ पकड़कर अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। कोशिश कीजिएगा किसी को पूछने की कि मैं यदि मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, वुड यू लाइक टू कम विथ मी ऑन अ राइड ऑफ डेथ? क्या आप मेरे साथ मृत्यु के उस सफर में आगे बढ़ना चाहेंगे? बहुत ही ये विस्मयकारी चीज है कि लोग चाहे अपने आप को कितना ही आपका क्लोज क्यों ना कहे, नजदीकी क्यों ना माने, कोई भी व्यक्ति आपके साथ चलने को तैयार नहीं होगा। चाहे वो आपको कितना ही प्रेम क्यों ना करता हो, कोई भी व्यक्ति, किसी भी इंसान में वो सामर्थ्य, वो हिम्मत नहीं होगी कि आपको कह पाए हाँ मैं चलूंगा, अंतर मन से, पूर्ण भाव से कह पाए आपको। कहने के लिए तो खैर कहा ही जा सकता है कि हाँ मैं चल दूंगा, उसे भी पता है कि पॉसिबल नहीं होगा। तो सिर्फ कहने की यहाँ पर बात नहीं हो रही, जहां पर अंतर मन से एक सहमति का भाव हो, ऐसे इंसान हमको नहीं देखने को मिलते। क्योंकि मृत्यु वो सिखाता है हमें कि यात्रा, ये जो सफर है वो केवल और केवल आप अकेले ही संपन्न कर सकते हैं। तो उसी यात्रा को ये पंचमुंड जो है वो दर्शाते हैं। उसके अलावा खैर बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि पंचमुंड पंच महाभूत को दर्शाते हैं, जल वायु आकाश अग्नि पृथ्वी, हमारे जो कर्मेंद्रिय हैं, हमारे जो घ्राणेन्द्रिय हैं, जो ज्ञानेन्द्रिय हैं, उनको दर्शाते हैं, इत्यादि इत्यादि। किंतु ये सारी बातें आपको किताबों से मिल जाएंगी। मेरा जो एक अंडरस्टैंडिंग था, मेरी जो समझ थी पंचमुंड के बारे में, और जिसके ऊपर मैंने रिफ्लेक्ट किया था, जो मेरा आत्मचिंतन था, वो मैंने आपके साथ आज साझा किया। और मुझे आशा है कि आपको इससे एक इंसाइट प्राप्त हुई होगी। और आप जब तंत्र साधना ऐप पर ये साधना करेंगे, यदि आप यहाँ तक इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं माँ भैरवी की साधना पर, तो डेफिनेटली आपको बहुत सहायता प्राप्त होगी। और आई ट्रूली विश कि आपकी ये साधना बहुत ही शुभ रहे और देवी माँ भैरवी की अपार कृपा प्राप्त हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कह रहा था रिगार्डिंग महाशिवरात्रि, तो 15 फरवरी को ये जो पावन दिवस आ रहा है, यहाँ पर आप तंत्र साधना ऐप पर जो कोई भी साधना कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, यदि आपकी साधना पहले से जारी है। यदि आप पहली बार इस लाइव को देख रहे हैं, यदि आप पहली बार तंत्र साधना ऐप के बारे में सुन रहे हैं, तो आपको सबसे पहली जो महाविद्या है देवी माँ काली, उनसे शुरुआत करनी होगी अपनी साधना की यात्रा की। तो महाशिवरात्रि का जो पावन अवसर है वो सर्वश्रेष्ठ दिवस होगा माँ काली की साधना आरंभ करने का। और यदि आप महादेव के प्रति ज्यादा आसक्त हैं, ज्यादा आपको उनके प्रति आकर्षण है, आपकी भावना, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा उनके प्रति ज्यादा है, तो महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर साधना ऐप, जो स्वामी जी की ही ऐप है, जहां पर अलग अलग देवी देवताओं की साधना दी गई है, जहां पर भगवान गणेश, भगवान महादेव, भगवान सूर्य, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, देवी माँ दुर्गा, माँ गायत्री इत्यादि साधनाएं जो हैं इन स्वरूपों की दी गई है। तो यदि आप वहां पर जाएंगे महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर, तो आपको स्वामी जी के साथ लाइव अभिषेकम करने का अवसर प्राप्त होगा। शाम 6 बजे साधना ऐप पर स्वामी जी के साथ आप लाइव अभिषेकम में जुड़ पाएंगे, उसका लाभ ले पाएंगे, भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। और यह अभिषेकम जो श्री बद्रिका आश्रम की पावन भूमि है, वहां पर जो श्री हरि भगवान अपने पूर्ण स्वरूप में विराजमान है, विद्यमान है, प्राण प्रतिष्ठित है, उनके ऊपर किया जाता है स्वामी जी के द्वारा। और पूरे वर्ष में केवल एक बार स्वामी जी भगवान श्री हरि पर अभिषेकम करते हैं, रुद्राभिषेकम। तो ये जो रुद्राभिषेकम है वो आप 15 फरवरी को कर पाएंगे। और उसी के बाद जब स्वामी जी का प्रवचन होगा, डिस्कोर्स होगा, उसमें जो 11 दिन की महारुद्र साधना शुरू होने जा रही है, उसका मूल मंत्र आपको प्रदान किया जाएगा, जिसकी आप साधना 11 दिनों के लिए करेंगे, और वो भी स्वामी जी के साथ लाइव ऑन साधना ऐप, जहां पर नित्य प्रतिदिन सुबह 5:15 पर यज्ञ होंगे और स्वामी जी के साथ 11 दिन
आप उस साधना का लाभ ले पाएंगे। सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट विक्रम कि आप एक बहुत ही सुंदर पंचमुंडी आसन का वीडियो जो है, ट्यूटोरियल काइंड ऑफ अ वीडियो, जो हमारे साधकों को आप दिखाना चाहते हैं कि कैसे आप जब तंत्र साधनाएं पर आगे बढ़ेंगे और पंचमुंडी साधना जब आप करेंगे तब आपको कैसा प्रभाव प्राप्त हो सकता है, क्या उसका एक दृश्य है उस साधना का जो स्वामी जी के एक डिवाइन विजन से क्रिएट हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप हमारे साधकों को प्लीज दिखाइए। माता पिता जगत धन्या जगत ब्रह्म स्वरूपिणी हुं फट सिद्धिदात्री च सिद्धास्या हय सिद्धा दुष्ट जंतुषु हुं फट सर्वभूत प्रियंकरी सर्वभूत स्वरूपिणी हुं फट। थैंक यू सो मच विक्रम। सो अब हम Q&A की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास 5 मिनट है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि यदि हम 2 या 3 प्रश्न ले पाए और यदि आप वो प्रश्न बताना चाहे तो इट वुड बी अ ग्रेट थिंग। सो विल मूव फॉरवर्ड टू Q&A। Thank you so much, Brahmachari ji. Brahmachari ji, let us begin with what is the topic for tomorrow's session so that everybody is apprised of what you will be covering tomorrow. Please go ahead, please. Hanji, no, that's the first question, Brahmachari ji. Acha, that is the first question. Okay. So can I get the paper? Tomorrow, I believe we will be covering about Bhakti and Tantra, Brahmachari ji. Right. So just give me a second. सो कल का जो विषय है वो है भक्ति और तंत्र के बारे में, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन है कि तंत्र जो है वो भक्ति मार्ग से अलग है और भक्ति योग से अलग है। कहाँ पर डिफरेंस है, कहाँ पर भक्ति और तंत्र का सायुज्य भी है, उसके बारे में हम इन डेप्थ जो है वो कल बात करने वाले हैं कि कैसे आप तंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भक्ति का आपको सहारा लेना ही पड़ता है। विदाउट डिवोशन, विदाउट भक्ति कोई भी साधना, चाहे वो वैदिक साधना हो चाहे वो तांत्रिक साधना हो, सफल हो ही नहीं सकती। सो उसी टॉपिक पर हम कल बात करने वाले हैं। Thank you so much, Brahmachari ji. Something for all of us to look out for as to how to imbibe bhakti during the path of Tantra. A sadhak asks a question, Brahmachari ji. If a sadhak is doing Gayatri sadhana, can they also perform Dashmahavidya sadhana during this time along with this as well? एब्सोल्युटली। आप देखिए, गायत्री माँ की साधना जो है वो वेद माता की साधना है, और जो हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद, वहीं से तो तंत्र की प्राप्ति हुई है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप वैदिक साधना करते समय पर तांत्रिक साधना नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर है कि जब आप कोई बहुत ही स्पेसिफिक अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई महापुरुष शरण कर रहे हैं, मान लीजिए
12 लाख जप का, 24 लाख जप का कोई आपका अनुष्ठान चल रहा है, तो उस समय पर एक अनुष्ठान करना हितावह होता है। लेकिन यदि आप गायत्री साधना कर रहे हैं नित्य पूजा के स्वरूप में, नित्य कर्म के स्वरूप में, तो आप डेफिनेटली अपने नित्य कर्म के साथ, देवी माँ गायत्री की साधना के साथ, तंत्र साधना ऐप पर महाविद्याओं की साधना शुरू कर सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। Thank you, Brahmachari ji. Some Sadak is asking on where can they participate for the Abhishekam that will happen on the 15th. As Brahmachari ji said, it is on the Sadhana app. We will put up a link in the comment section. You can download the app. We also have a WhatsApp group where you will be given daily instructions or information on how the sadhana has to be performed and any queries that you have. We'll put up the link in the comment section. Please take a look. So next question, Brahmachari ji, is what if how if at all during the performing the sadhana, let's say Panchmundi sadhana, Brahmachari ji, what happens if one misses a day? How do you do kind of प्रायश्चित for it? So देखिए, मैं आपको साधना का मूल विधान ही बताऊंगा। यदि आप एक भी दिवस मिस कर रहे हैं साधना में, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप डे 1 से साधना की शुरुआत करें। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर देवी माँ से मन ही मन क्षमा मांगकर आगे बढ़ सकते हैं। पर मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये होगा आपको कि एक भी दिन यदि आप साधना को खंडित कर रहे हैं, इट इज लाइक फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उसमें 1 महीना आप पढ़ाई के लिए नहीं गए, या फिर आपने कोई एजुकेशन नहीं लिया, आपने अपने घर पर भी कोई पढ़ाई नहीं की, आप शो अप ही नहीं करे, तो आपको पेस जो चल रही है एजुकेशन की, जो आपकी पढ़ाई की, क्या उसके साथ आप मैच कर पाएंगे स्पीड? हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े। वैसे ही यदि मान लीजिए कोई इंसान कीमोथेरापी ले रहा है, यदि वो अपनी एक साइकिल मिस कर दे, तो क्या उसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट मानी जा सकती? तो ये जो है वो आध्यात्मिक खुराक है, मन को देने जाने वाला खुराक है। तो जैसे हम दिवस में भोजन स्किप नहीं करते, हम सोना नहीं भूलते, रात को हम विदाउट फेल सो ही जाते हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उसमें हमारा कोई नेगोशिएशन नहीं होता। तो मैं कभी नहीं समझ पाया आज तक कि साधना के विषय में हम क्यों ये पूछते हैं कि एक दिन अगर मिस हो जाए तो क्या शुरू कर सकते हैं। ये तो फिर वही बात हो गई कि हम साधना को एक टाइम पास के स्वरूप में ले रहे हैं। यदि टाइम पास ही कर रहे हैं तो बहुत सारी हमारे पास एक्टिविटीज हैं करने के लिए। साधना को साधना के स्वरूप में किया जाए तब फल प्राप्त होता है, और यदि उसे साधना के स्वरूप में नहीं किया जाता तो फिर हमें फरियाद करने का अधिकार नहीं हो सकता हमारे पास कि मुझे फल क्यों नहीं मिला। मैंने तो इतनी साधनाएं कर ली, इतने मंत्र जो है मैंने जप लिए स्वामी जी के द्वारा, और पूरे वैदिक साधना फाउंडेशन के द्वारा इतने सारे टॉल क्लेम्स किए जाते थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ मेरे जीवन में। पर जो कमिटमेंट आपको देना था, क्या वो आप दे पाए? ये प्रश्न पहले अपने आप को पूछना नितांत आवश्यक हो जाता है, जहां पर आप कोई भी फरियाद करते हैं। तो यदि हम साधना को मिस कर रहे हैं, रिकमेंडेशन यही होगा, डे 1 से शुरू कर दीजिए, और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आप अपने मन का कर सकते हैं फिर। Thank you very much, Brahmachari ji. So I think many sadhaks are asking similar question of whether they are performing some sadhana during Mahashivratri. Can they perform the Abhishekam? Can they start the Rudra sadhana in parallel? Is that okay? So I think once more, I know you already answered, Brahmachari ji, but if you can just explain once more, it will put everybody's question to rest. सो आपकी पहले यदि कोई भी साधना चल रही है, पहले से चलती आ रही है, आपका संकल्प पहले से तंत्र साधना ऐप पर चल रहा है, आप डेफिनेटली साधना को कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आप नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं साधना को फ्रॉम डे 1 ऑनवर्ड्स, तो महाशिवरात्रि की रात से, अर्थात महाशिवरात्रि के दिवस पर 15 फरवरी को सूर्यास्त के बाद अपने अनुष्ठान की शुरुआत कीजिए, चाहे वो तंत्र साधना ऐप पर हो, चाहे वो साधना ऐप पर हो। और जहां पर बात है 2 साधनाओं की, मैंने यहाँ पर बता दिया कि ज्यादातर हो पाए उतना 2 ऊर्जाओं को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। किंतु वैदिक और तांत्रिक साधना जो है, यदि आप एक साधना नित्य कर्म के स्वरूप में कर रहे हैं, एक साधना आप अनुष्ठान के स्वरूप में कर रहे हैं, पुरुष शरण के स्वरूप में कर रहे हैं, और तंत्र साधना है,
देन आप डेफिनेटली 2 साधना एक साथ कर सकते हैं। और जहाँ पर स्वामी जी की साधनाओं की बात आती है, चाहे वो तंत्र साधना ऐप पर हो, चाहे वो वैदिक साधना जो हमारी ऐप है दूसरी, उसके ऊपर हो, स्वामी जी की सभी साधनाएँ जो हैं उसमें वो विधान दिया गया है कि आप उसके साथ दूसरी साधना कर सकते हैं। जैसे कि श्री सूक्तम साधना के साथ भी दूसरी साधना पैरेलल चल सकती है। नवदुर्गा साधना की जब बारी आती है, उस समय पर भी हम हमारी पहले वाली कोई साधना अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, इट इज़ कंप्लीटली ओके। तो निश्चिंत होकर आप साधना जो है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। Thank you so much, Brahmacharya ji. I think owing to your time and reaching us the time completion for this session, thank you so much for your patience and walking us through today's topic. We look forward to hearing from you tomorrow, 7:30 same time about Bhakti and Tantra. So every one of you who are attending to today's session, please we invite you to attend tomorrow as well. And any questions that you have had that was unanswered, please write to us at sarvo@tantrasadhana.app. And of course, please show up tomorrow and Brahmachari ji will take us with the new topic as well as answer some questions tomorrow as well. Brahmachari ji, thank you so much for your time. Thank you so much for your guidance. थैंक यू। आप सबका बहुत-बहुत आभार और फिर से एक बार कल मिलेंगे शाम को 7:30 बजे। ऑन दैट नोट, वुड लाइक टू कंक्लूड विथ पूर्णाहुति मंत्र। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। थैंक यू। ओम श्री मात्रे नमः।